Hello guys, welcome to JS classes, and today we'll be discussing about CLAT 2020. We'll be discussing basically about the details of the exams, about when the exam is, what is the last date of filling up the form, and when is the examination and when it is going to be held, and what are the new announcements from the government about the examinations, right? And also there are at least 60 days which are left for the exam right now, so we will be discussing about the 60-day preparation strategy in the examination. So let's continue. Abhi dekhte hain what is CLAT and what it is all about. See, what is CLAT? CLAT is a national level examination for the entrance to UG programs in the law universities. Okay, there are at least 22 national law universities and many other universities which take the score of CLAT for their admission purposes. And you can also get admission to different courses like BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, BSW LLB and LLM. And there are a few PG courses as well, but primarily we'll be discussing today about the UG courses. So let's discuss about it. Okay, so when is the last date to fill the form? Yesterday only they have announced that they have extended the last date to fill the form again till yesterday. Yesterday was the last date actually to fill up the form. Now they have extended it up to 1st July, and they have announced that they'll be discussing about, they'll be announcing about the new examination date on 1st of July, and that will be at least 21 days prior to the actual examination date. So the examination will at least be held after 21st of July because it will be 21 days prior notice to it, right? So just be prepared because we have at least 60 days to prepare for it. So it is a very big time. It is a golden opportunity for you people so that you can prepare it really well, right? So let's discuss about the next point. Okay, so now coming to the eligibility criteria, right? What is the eligibility criteria? When we talk about the eligibility criteria for CLAT, the things is, number one, in 10+2 you are supposed to get at least 45% marks. This is applicable only for general category and OBC category and specially abled persons category. There are three categories in which you have to attain at least 45% marks in 10+2. And for the categories like SC, ST and scheduled tribe ST, the norms are 40% marks or more. Now coming to the age limit, there is no age limit as of now, and the students who are giving exam this year, they are supposed to show their documents at the time of admission. If they fail for it, they are not eligible for the admission, right? So coming to the next slide and talking more about the exam, we'll see. Okay, so what is the paper pattern right now? The paper pattern, if we talk about, there are around 4-5 sections which talk about the CLAT exam. First is the English section. In the English section, basically, see, not only English section, but in all the sections, CLAT is basically checking your reading and comprehensive skills, whether it be English language, whether it be logical reasoning, general awareness or legal aptitude. They are basically checking your reading and comprehension skills. So in the English language, you will be getting approximately 28 to 32 questions that constitute around 20% of the paper. Now in the quantitative aptitude, there will be a little less questions. It only constitute around 10% of the paper. Then comes logical reasoning, general awareness. In both you have around 28 questions. General awareness has a little more questions, around 35 to 39. Same is with the legal aptitude. This one is a scoring section in the exam. That is very important. Now the total marks. There are total 150 questions in the examination and you have got 120 minutes to solve it. The pattern has completely changed from the last year. Also the type of questions have also changed, so we need to unlearn what we have learned in the previous years and learn new things and new techniques to follow the same. Earlier there were around 200 questions, right? Right now there are only 150 questions this year, and the pattern has changed a little bit, which we'll be talking about in the next slide, right? Coming to the next slide. Now the thing is, the first thought that comes, CLAT 120 cutoff
कितना कट ऑफ रहेगा क्लैट 2020 का? वी डोंट नो, बिकॉज द पैटर्न हैज चेंज, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज चेंज, सो नो वन इन दिस एंटायर इंडिया कैन एवर प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट कट ऑफ क्लैट 2020 because the pattern has just changed. If the pattern had not been changed, we could have guessed it via the previous results, via the previous year examinations, right? But right now we do not know about what is going to happen. Also, will CLAT 2020 be difficult? सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन है ये कि ये डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा. सी, डिफिकल्ट होगा तो सभी के लिए होगा और नहीं डिफिकल्ट होगा तो किसी के लिए भी नहीं होगा. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट, नॉट फॉर द वर्स्ट, राइट? सो अगर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अगर आपकी प्रिपरेशन 100% है और सामने वाले की भी 100% है तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ यू, नॉट ओनली यू, राइट? सो डू नॉट बी टेंस्ड अबाउट इट कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला. यू गिव योर बेस्ट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज SWOT एनालिसिस. जब हम एग्जाम देते हैं, आप अगर एक क्लैट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू? आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको जो करनी है दैट इज गो थ्रू द सिलेबस की क्लैट एग्जामिनेशन में आने क्या क्या वाला है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू योर SWOT एनालिसिस. ये सभी का अलग अलग होगा. ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही बेसिक्स पॉइंट लिखे हैं, राइट? सभी का जो SWOT एनालिसिस है वो अलग अलग होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और आपकी थ्रेट्स क्या हैं. ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड इन अ वेरी गुड वे. अगर आपको किसी टारगेट को शूट करना है, सो व्हाट इज द बेस्ट वे? यू लुक एट द टारगेट, यू चेक द विंड कि किस तरफ से कितनी विंड आ रही है, यू चेक अदर ओपोनेंट्स की कौन क्या कर रहा है, एंड देन फोकस ऑन योर गोल, राइट? सो दिस इज हाउ एनालिसिस गो फॉर एनी ऑफ द टारगेट्स. नॉट इट बी क्लैट, लेट इट बी स्पोर्ट्स, लेट इट बी एनीथिंग. ठीक है, तो इन दिस ऑल्सो यू हैव टू डू योर SWOT एनालिसिस. स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ आपकी होगी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अभी एक मैं चीज डिस्कस करने वाला हूं इसके बाद में कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अगर कोई भी 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कोई एक वीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड पार्ट इन एटलीस्ट क्लैट 2020. यू वुड नॉट बी हैम्पर्ड विद ओनली वन सब्जेक्ट, राइट? वीकनेस, वीक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? अगर हम वीक सब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी मेहनत करें, सो एटलीस्ट वी आर नॉट ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स तो हैं, उन पे थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है, बट वीक सब्जेक्ट्स पे वी नीड टू focus even more and prepare even more. Now the opportunities is the best law college. Very simple. CLAT के बाद अपॉर्चुनिटी क्या है? पहली अपॉर्चुनिटी मेरी ये है कि मुझे बेस्ट लॉ कॉलेज में जाना है. आफ्टर दैट देर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा स्कोप है क्लैट के बाद में. बट राइट नाउ माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मुझे सोचना है इज टू गैदर और टू ग्रैब द बेस्ट लॉ कॉलेज इन द कंट्री. एंड द थ्रेट इज कॉम्पिटिशन. थ्रेट कंपटीशन है, बिल्कुल जरूर है, बट इट कैन easily be changed into your strength if you work very very hard, and we at JS classes will be going to help you out to prepare for CLAT examination. Let's discuss about the next thing. Now, जो मैंने अभी बात कही थी कि one subject if it is weak it is not going to hamper you. क्यों मैंने बोला था? Because there is no sectional cut off in this examination. सपोज कीजिए आपकी मैथ्स वीक है. अगर आपकी मैथ्स वीक है, ठीक है, 10 में से आपने 5 क्वेश्चन किए, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैम्पर यू, बशर्ते कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छे से आपने उनको दिया है एग्जामिनेशन में. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैम्पर यू. बट ऐसा नहीं है कि वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ देना है. यू हैव टू प्रिपेयर देम एटलीस्ट दैट यू आर नॉट ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन. एटलीस्ट यू आर एबल टू अटेम्प्ट सम with a good speed, because we have to maintain the speed and accuracy, both of them. Now be updated with the legal amendments, important judicial cases and current affairs. जितने भी करंट अभी अफेयर्स हैं वो तो ठीक है, जो सेक्शन आने वाला है जनरल अवेयरनेस का उसमें आएगा. लीगल एप्टीट्यूड के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं इस साल के क्लैट के अंदर, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं या जो लेटेस्ट केसेस पे हमारे डिसीजंस आए हैं उनको लेकर दे आर क्वेश्चनिंग यू. सो यू शुड नो कि जो भी लेटेस्ट डिसीजंस हुए हैं उसमें कौन सा आर्टिकल लग रहा है, कौन सा अमेंडमेंट लग रहा है और किसके तहत उसको कन्विक्ट किया जा रहा है या कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है. जैसे भी निर्भया केस हुआ था रिसेंटली, सो उसके अंदर वी शुड नो कि जो लॉयर था उसने किस किस अमेंडमेंट या आर्टिकल के तहत जो है उनकी फांसी की सजा रोक रखी थी, राइट? और अल्टीमेटली किस
अमेंडमेंट के तहत उनको फांसी की सजा मिली है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, और हमें उन चीजों को स्टडी करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज क्लैट इज राइट नाउ आस्किंग अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एज वेल. उसी में से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है. आइए चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे. अभी बात करनी है हमें डेली स्ट्रैटेजी के ऊपर कि डेली हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से करना है, और क्या क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन क्लैट इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन 9th and 10th. वी हैव टू अनलर्न द थिंग्स जो हमने अभी तक सीखी हैं, जो हमने बचपन में सीखी थी कि हमने ये आरसी ऐसे ऐसे करना है, आरसी पढ़ लो, क्वेश्चन आया और ऊपर पैसेज से देख के उसका आंसर टिक कर दो. नो, वी डू नॉट हैव टू डू दैट. सबसे पहली बात, आरसी हमें कैसे अटेंड करना है? सबसे पहले आपके पास एक ऑफलाइन पेपर आने वाला है. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस, एक बार, मतलब जस्ट गिव ओनली 30 seconds टू गो थ्रू द क्वेश्चंस. उसके बाद हम क्या करेंगे? when we are reading out the passage, we will not just read out, we will also underline the important viewpoints of that passage and also give in अपने दिमाग में just create a summary of that कि passage actually बोलना क्या चाहता है. because बहुत सारे questions में it will ask you about the conclusion of the passage sometimes, right? so you should be very clear in your mind about what about the passage is about to say, कि पूरा का पूरा पैसेज आखिर बोलना क्या चाहता है, एंड ऑल्सो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स जो कि पैसेज के अंदर आते हैं. सेकेंडली, इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम इसके अंदर जितने भी वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 to 4 सेट्स डेली, दिस इज द डेली शेड्यूल विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ. सो अगर हम 3 से 4 सेट डेली कर रहे हैं आरसीएस के अंदर, सो उसके अंदर जितनी भी वोकैबुलरी आ रही है, दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर पेपर एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट. Also find out the meaning of it in that particular passage, because a word has a lot of meanings, a lot of connotations, so it depends upon that particular line or the sentence कि उसमें उसका मीनिंग क्या होने वाला है. So we have to be very careful while doing the RCs. So RC is RC as well as vocabulary. I'll also discuss about reading newspaper. यहीं पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसमें भी देर आर 2 things. वन इज जीके जो आपकी स्ट्रांग होती है, सेकेंड थिंग इज vocab. If you are reading a good newspaper, let's say The Hindu, supposed to be the very good newspaper according to the examination point of view, uske andar if you are reading the editorial section, especially there are 3-4 sections which you have to read. Suppose you are reading the editorial sections, so there are very good use of vocabulary, very good use of diction is there, which you can attain by doing the vocabulary part in along with reading the newspapers, right? So जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, similar thing you have to do, underline the hard words or good diction which is used in the paper and note down the meanings, and you also have to learn them and try to use them in your general day-to-day life, so that when it comes in the examination you don't forget it at all. Now coming to these 2 sections, these 2 sections come under one section, that is लॉजिकल रीजनिंग. ये दोनों के दोनों उसी में आ जाते हैं. अगर हम लॉजिकल पजल्स की बात करें, देखिए लास्ट ईयर तक क्या होता था, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन था उसके अंदर एनालिटिकल ज्यादा आता था, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड फर्दर सच क्वेश्चंस. ये चीजें बहुत ज्यादा आती थी रादर देन क्रिटिकल रीजनिंग, जिसका सेक्शन जो था वो बहुत छोटा था, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस आते थे, राइट? अब क्या हो रहा है, इसको जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा दे दिया है क्रिटिकल रीजनिंग को. दे हैव इंडियनाइज द प्रोजेक्ट, राइट? जो एग्जामिनेशन है उसको इंडियनाइज कर दिया है, क्योंकि हमारे जो लॉ एग्जाम्स होते हैं, या मैं बोलूं कि लॉ अगर हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू रीड एंड एनालाइज कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट? सो दैट इज व्हाई दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग टू क्रिटिकल रीजनिंग. आई वुड नॉट शिफ्टेड, बट जो इंपॉर्टेंस है वो क्रिटिकल रीजनिंग को ज्यादा दे दी गई है. नाउ लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस इससे करने हैं एनालिटिकल पार्ट से. अगर आप 2 से 3 सेट या 4 सेट लगा रहे हैं दिन में, तो एटलीस्ट 2-3 सेट आप एनालिटिकल के जरूर लगाएं, बिकॉज देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच विल कम फ्रॉम ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट एंड आई वुड से डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग. डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ सिलोगिज्म. Let's say
हमने बोला all A are B, some B are C. So what can be deduced out of that? राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज डिड्यूसिव लॉजिकल रीजनिंग, जिसके आने की चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है इस साल के एग्जाम में बहुत ज्यादा है. नाउ कमिंग टू सिमिलर थिंग लॉजिकल पजल्स, वही चीजें हैं डिड्यूसिव लॉजिकल रीजनिंग. तो उसी में आपको पजल जो है एटलीस्ट 2 से 3 सेट या 4 सेट एक दिन में लगा देंगे. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. कमिंग टू द वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट. ओके, नाउ वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग, अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात करता हूं, सो देयर आर अराउंड 4-5 थिंग्स दैट यू हैव टू चेक आउट की होता क्या है. नाउ प्रीमाइस, या मैं बोलूं एजम्पशन. प्रीमाइस और एजम्पशन क्या होता है? मैंने बोला कि बेटा आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है. This is my conclusion or my argument or the paragraph that I have given that a particular student will get a very good rank in CLAT 2020. अब उसके लिए मेरा प्रीमाइस क्या है या मेरा एजम्पशन क्या है? मुझे पहले से ऐसा क्या पता है कि मैंने ये स्टेटमेंट या ये आर्ग्यूमेंट या ये जो सेंटेंस है वो बोल दिया. मुझे ये पता है कि जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं वो दिन में एटलीस्ट 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, एंड दैट टू अ वेरी स्मार्ट स्टडी. सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, बहुत ढंग से स्मार्टली पढ़ रहा है. राइट, सो दैट इज व्हाट एजम्पशन मीन्स, कि जो पैसेज में कंक्लूजन है या जो पैसेज में कोई सेंटेंस दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है. पहले से ऐसी कौन सी बात थी जो ऑथर को पता थी कि उसने ऐसा स्टेटमेंट बोला. सो दिस इज व्हाट प्रीमाइस एंड एजम्पशन मीन्स. सेकेंड, कंक्लूजन. मैंने आपको पहले ही इंग्लिश आरसी में बोला था कि अपने दिमाग में एक समरी बना के चलो कि अल्टीमेटली वो कहना क्या चाहता है. अब अगर सपोज कीजिए मैंने सेंटेंस बोला कि इस बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको ये पढ़ना चाहिए, और लास्ट में बोला कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है. अब मेरा अब ये बताइए, जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं इसका बेसिक कंक्लूजन क्या है? दिस इज द बेसिक कंक्लूजन, कि मुझे पढ़ना कैसे है. अबाउट कैट कब होने वाला है, कब उसकी लास्ट डेट है, दैट इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज इज पढ़ना क्या है और कैसे है. तो समरी में अल्टीमेटली ये आनी चीज चाहिए, राइट, कि सर ने क्या बताया कि पढ़ना कैसे है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड थिंग इज इन्फरेंस. इन्फरेंस क्या होता है कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर सेंटेंस बोला, इट इज नॉट अबाउट द होल पैसेज, इट कैन बी अबाउट ए सेंटेंस. सो अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोला तो उसका इन्फरेंस क्या है, उससे मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द इन्फरेंस जो उसके अंदर आता है, द फोर्थ पॉइंट कम्स इज स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन, कि जो भी ऑथर ने बोला है उसका जो समरी है, उसका जो कंक्लूजन है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको मोस्ट स्ट्रेंथन कर रही है. अब क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और चारों ऑप्शंस के अंदर आपको स्ट्रेंथनिंग ही दी होगी. चांसेस पूरे यही है कि चारों स्टेटमेंट आपको स्ट्रेंथनिंग वाली होगी, बट यू हैव टू टिक दैट करेक्ट ऑप्शन जिसमें स्ट्रेंथनिंग सबसे ज्यादा हो. राइट, सो योर इंग्लिश रीडिंग स्किल्स शुड बी वेरी गुड एंड योर वोकैबुलरी शुड बी गुड, ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएं कि 4 स्टेटमेंट जो है उसमें से सबसे ज्यादा इसको स्ट्रेंथन कौन सी स्टेटमेंट कर रही है. एंड द फिफ्थ थिंग दैट कम्स इज वीकनिंग द कंक्लूजन. राइट, वही चीज, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑथर के कंक्लूजन को या ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सबसे ज्यादा वीकन कर रही है. सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट कम इन क्रिटिकल रीजनिंग. तो ये पांचों चीजें हैं क्या, ऑथर पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से. सो दैट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि इन पांचों का मतलब क्या है. अगर आपको ये पांचों चीज समझ में नहीं आई है तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दोज क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि अगर एक पैसेज आ रहा है क्रिटिकल रीजनिंग का तो उसमें ये पांचों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. इफ देयर आर 5 क्वेश्चंस, सो ऑल 5 क्वेश्चंस विल बी देयर माइट बी 1 लेस और 1 मोर, बट बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पांचों क्वेश्चंस आ जाएंगे एक बार के आरसी में. नाउ कमिंग टू द डेटा इंटरप्रिटेशन, कमिंग टू द डीआई पार्ट. नाउ व्हाट इज डीआई? सबसे पहली बात, आपको कोई डेटा दिया गया है, उससे आपको इंटरप्रेट करना है जो भी क्वेश्चन दिया गया है मुझे. राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको हम सीखेंगे कैसे? सीखने से पहले 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना एलिमेंट्री मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो हमने 8th 9th 10th में सीखा था वो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। सेकंड चीज जो है, वी नीड टू नो परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस। परसेंटेज और फ्रैक्शन बोलने का मतलब क्या है, हमें सबको पता है परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज नॉट अबाउट दैट। वी हैव टू लर्न द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू द क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल। अब मुझे किसी ने बोला 60% ऑफ समथिंग, सो आई वुड डायरेक्टली से 3/5 बिकॉज आई नो द वैल्यू। मैं पहले उसको 60/100 लिखूं, फिर उसको 20 से काटूं, so that is costing me 2 seconds and 2 seconds is a very big thing. When it is a lot of competition is there, 2 second is a very big thing. So अगर आपको ये वैल्यूज याद रहने वाली हैं, so it is very easy कि आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। Okay, so next come the legal reasoning. अभी क्या है लीगल रीजनिंग में, देखिए ऐसा नहीं है कि इफ यू आर सिटिंग फॉर अ लॉ एग्जाम या लॉ एंट्रेंस एग्जाम तो उसके लिए आपको लॉ की सारी बातें पता होनी जरूरी है। ये बहुत बच्चों के मन में ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि यार लॉ के लिए तो बैठ रहे और लॉ ही पूछ रहे हैं, हाउ इट इज दैट फीजिबल, हमने कोई लॉ पढ़ा थोड़ी है। बट नो, CLAT is not going to ask you about your legal knowledge, it is just going to ask you about your knowledge about current legal practices that is going on. जितने भी amendments अभी current हुई है, करंट अमेंडमेंट्स, या फिर मैं बोलूं जो लेटेस्ट जुडिशियल डिसीजन है, दे जस्ट आस्क यू कि अभी जो सपोज एक क्वेश्चन आया कि उसने पूरा निर्भया केस का दे दिया कि ये हुआ था एंड उसके बाद ये जो है मेरे पास उसके वर्डिक्ट्स आए थे। बट अगर उसमें से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर यहीं तक मेरे पास इंफॉर्मेशन होती तो आपके हिसाब से ये कन्विक्ट होता या ना होता। सो देयर मे बी टाइम्स जहां पे सिर्फ वो आपका एक एनालिटिकल माइंड चेक करेंगे दैट हाउ यू आर एबल टू जज द सिचुएशंस इन अ व्हाट बेटर वे यू आर एबल टू जज द सिचुएशन। सो दे आर नॉट checking your legal knowledge, but yes, you have to study about the legal amendments, at least the current and important legal amendments to some level. जितने भी current amendments हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर वाला हुआ है सेक्शन 370, 35A, उसके बाद निर्भया केस और भी जो 5-6 केसेस हैं जो करंट हिस्ट्री में चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे कुछ केसेस हैं जो कि बहुत पुराने हैं बट आज भी उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ें, या लेटेस्ट डिसीजंस जो हैं वो किस अमेंडमेंट के हिसाब से दिए गए हैं वो हम चीज़ पढ़ें। तो वही चीज़ें जो हैं वो लीगल रीजनिंग में आपसे पूछी जाएंगी, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ when we come to data interpretation, there are 3-4 things that you have to keep in your mind. सबसे पहला आपको अपना एलिमेंट्री मैथ्स नॉलेज होना चाहिए, राइट। एलिमेंट्री मैथ्स नॉलेज कहने से मेरा मतलब क्या है, जो आपने 7th 8th 9th 10th में जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे आपको एक बार याद होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नॉट एवरी ऑल द थ्योरम्स एंड ऑल द फॉर्मूलाज, नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे जितने भी फॉर्मूलाज से छोटे छोटे वो आपको याद होने चाहिए बिकॉज दिस इज व्हाट डीआई इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। सेकेंड थिंग जो है आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन, इन दोनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। अभी वैल्यूज याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सपोज मेरे एग्जाम में आता है दैट 60% ऑफ समथिंग, 60% ऑफ 50, तो मैं कैसे करूंगा फटाफट से 50 × 60 अपॉन 100, फिर 0 से 0 काटा, ये किया, ये आ गया 30। ये तो बहुत इजी पार्ट था, बट अगर कोई अच्छी सी अजीब सी वैल्यू आई तब मैं क्या करूंगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आई नीड टू रिमेंबर दैट 60 इज 3/5। ये इजी था या वो इजी था, इस केस में दोनों इजी थे, बट इट टुक मी 1 more second टू एटलीस्ट सॉल्व इट। 0 से 0 काटा, देन 5 से 30।
बट अगर मुझे ये 3/5 की वैल्यू पता हो दैट 60% इज 3/5, सो आई कैन सेव माई 1 or 2 seconds एंड इवन मोर, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द क्वेश्चन. सो आई नीड टू बी वेरी श्योर कि मुझे कुछ बेसिक वैल्यू जो है परसेंटेज और फ्रैक्शंस की या इसके इंटरचेंज की वो मुझे पता होनी चाहिए. इनफैक्ट मुझे थॉरोली याद होनी चाहिए. थर्ड थिंग, आई नीड टू बी थॉरो विद बेसिक स्क्वायर्स. स्क्वायर्स जो है मुझे 1 to 10 या 1 to 20 तक जो स्क्वायर्स जो है वो मुझे याद होने चाहिए एंड 1 to 10 तक क्यूब्स याद होने चाहिए. सो दीज 3-4 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही साथ डेली आपको 3 से 4 सेट जो हैं वो DI के लगाने ही लगाने हैं, बिकॉज देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट DI. देयर कैन बी DI रिगार्डिंग ट्रेन, देयर कैन बी DI रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क, there can be DI regarding I would say a general DI जिसमें population की बात हो रही है. there can be a missing DI जिसमें आधा डेटा दिया है, आधा डेटा क्वेश्चंस के अंदर दिया है. so there can be different types of DI that will only come through practice. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अलग अलग तरह की DI आपके सामने आएगी और तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में मैं उसको फटाफट से कैसे अटेम्प्ट करूं. if you have done a particular type of DI, it will be very easy for you to attempt in the examination. और लास्ट पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो नॉवेल्स हैं या जो एडिटोरियल्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर वो पढ़ने बहुत ज़रूरी है और कम से कम दिन में 3 घंटे कलेक्टिवली उसको देने ही देने हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. अब यहाँ पर भी रीडिंग स्किल्स काम आने वाली हैं, यहाँ पे भी कुछ हद तक, यहाँ पे बहुत हद तक, यहाँ पर बहुत हद तक, यहाँ पर कुछ हद तक. तो जो 3 इंपॉर्टेंट सेट हैं जो मैं बोलूं एटलीस्ट 60 से 70% ऑफ द एग्जामिनेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चंस को, वो जो हैं वो इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे ही डिपेंडेंट है आपकी, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फोकस करें कि मैं डेली 3 से 4 घंटे रीडिंग करूं, हर एक पैसेज की समरी लिखूं अपनी कॉपी के अंदर और जितने मुझे वर्ड्स आ रहे हैं उतनी वोकैब में अच्छे से याद करूं. आई शुड यूज दोज वर्ड्स इन माय डेली लाइफ, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएंगे. दिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव माय इंग्लिश. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि मुझे पढ़ना कैसे है. सर आपने बता तो दिया कि ये पढ़ लो 4 चीजें, बट हाउ टू स्टडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर मैंने आपको पिछले शेड्यूल में ये बताया कि भैया 6 से 8 या 8 से 9 घंटे पढ़ लो, राइट. इतना देर पढ़ने के लिए आपके पास टेक्निक भी तो होनी चाहिए. अब ये जो लास्ट पॉइंट है मॉक्स वाला, ये मैंने छोड़ दिया है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट इन 2 minutes, ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, अबाउट द टेक्निक्स ऑफ स्टडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ना कैसे है. पहली जो मेरी टेक्निक है दैट इज अ पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो किसी ने सुना? आई डोंट थिंक सो. अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है. पोमोडोरो इज द टेक्निक ऑफ स्टडिंग इन विच आई टेक अ गैप बिटवीन द स्टडी. मेरा जो दिमाग है या मैं बोलूँ जो ह्यूमन माइंड होता है दैट इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग फॉर दिस मच टाइम. प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट. हो सकता है किसी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, किसी कम हो, दैट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. सो जितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है आप उसको एनालाइज कीजिए कि इतनी देर में कॉन्सेंट्रेशन कर पा रहा हूँ, बट जो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज दिस मच. अभी इसके बाद आप अराउंड आपने सपोज कीजिए 50 मिनट्स पढ़ लिया, टेक अ 10 minute ब्रेक, डू वट एवर यू वॉन्ट, टीवी देखो, खाना खाओ, वट एवर यू वॉन्ट, बट टेक अ 10 minute ब्रेक फ्रॉम द स्टडी. यू डोंट नीड टू स्टडी एट दैट टाइम. देन 50 minutes again, then 10 minutes. ऐसे करते करते you need to take around 3 to 4 sessions, 50 minutes के, right? We have around 8 to 9 hours of study, right? अभी इसके बाद 3 to 4 hours of session लेने के बाद take 45 minutes of break, around 45 minutes to 1 hour of break, that's not a problem. ऐसे काम जो कि पिछले 10 मिनटों में नहीं हो रहे थे वो अभी इस 1 घंटे में आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट. सो टेक अ 1 hour of break, do any leisure activity, complete your course, house course, whatever you want to do. उसके बाद फिर से यही 3-4 सेशन मुझे लगाने होंगे. नाउ अब जब मैं बात करता हूँ इन सेशंस की, जब मैं बोल रहा हूँ कि 50 मिनट्स का सेशन है,
दिस 50 मिनट्स का सेशन शुड बी हाईली इंटेंस सेशंस, ये बहुत ही इंटेंस सेशन होने चाहिए। मोबाइल साइड में रख के वही फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। 50 मिनट्स अगर स्टडी करनी है मींस स्टडी करनी ही है और कुछ भी नहीं करना। दिस शुड बी हाई इंटेंस सेशंस, ध्यान रखना इस चीज का। अगर ये नहीं कर पा रहे हो मींस यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। अगर हर 10 मिनट में यू आर चेकिंग द मोबाइल फोन, इट इज ऑफ नो यूज। सो दीज 50 मिनट्स शुड बी ओनली फॉर स्टडिंग और किसी काम के लिए नहीं। Tell your family members, don't call me. Tell everyone, no message, no calls. Phone should be aside. Only 50 minutes for studying. उसके बाद 10 मिनट में do anything. जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं. Now, the second technique which I was talking about is eat the frog. Frog दिखने में बड़ा घिनौना लगता है ना. Everyone hates frog. राइट, सो ईट द फ्रॉग टेक्निक इज डू वट एवर यू हेट। सबसे पहले उठते ही वो काम करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सपोज यू डोंट लाइक DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, उठते ही सबसे पहले 4 DI करे, दिन भर की टेंशन खत्म। सो नाउ यू आर नॉट टेंस्ड अबाउट कि मुझे यार DI करनी है। अगर आप DI स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, सो द होल डे जब तक आपकी DI चल रही है या नहीं कर पाते तब तक आपके दिमाग में रहेगा अरे यार वो DI करनी है मुझे, राइट। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रादर देन अगर आपने DI स्टार्टिंग में कर ली, उठते ही सबसे पहले जो 40-50 मिनट थे वो आपने DI को दिए, 4 सेट कर दिया एंड देन यू आर हैप्पी द होल डे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, DI तो करनी नहीं, अब इंग्लिश वाले सेक्शंस रह गए पढ़ने वाले, दैट आई विल डू। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड eat the frog technique. Now the next technique which I was talking about is the Pareto principle. What does the Pareto principle says? That 20% of your effort will give you 80% of the returns. एफर्ट सिर्फ 20% डालो, रिटर्न 80% आए, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ स्मार्ट स्टडी। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्मार्ट हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें मेहनत कम है और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। वो 4 चीजें क्या हैं स्पेशली फॉर कैट एग्जाम्स? न्यूज़पेपर रीडिंग, मैंने पहले ही बोला सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू इंप्रूव योर इंग्लिश, दिस इज गोइंग टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। और जो मेजर सेक्शन है हमारे क्लैट का, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, और ये इसी से इंप्रूव होने वाली हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग आरसीज, जितने ज्यादा आरसी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिसिंग में क्या क्या आता है, उसको रीड करना, उसकी समरी बनाना, कंक्लूजन बनाना, वोकैबुलरी करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग आरसीज, और क्वेश्चंस करना, राइट। सो अगर आप ये चीजें करते हो, सो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आरसी करोगे, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अगेन इंप्रूव योर इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, जो कि मेजरली पार्ट क्लैट के अंदर काम आने वाला है। वोकैबुलरी, फिर से वही बात आ गई, वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, बट अगर आपको वोकैबुलरी पता है, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस एंड मॉक एनालिसिस। अभी हम इसकी बात करते हैं। हमारी पिछली स्लाइड में हमने ये पॉइंट जान के छोड़ा था अबाउट द मॉक एनालिसिस। सो द मॉक एनालिसिस थिंग, ये स्टार्टिंग डे से नहीं करना है हमें। वी डोंट हैव टू डू इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इफ यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। पहले कुछ दिन तक, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, लेट्स से 7 to 10 days, हम यही चीजें करेंगे जिसमें हमारे 6 से 7 घंटे निकल जाएंगे, राइट। मैंने यहाँ पे इसलिए अलग से लिखा है 6 से 7 घंटे, जिसमें हमारी ये चीजें निकल जाएंगी। उसके बाद व्हेन वी आर थॉरो विद द सिलेबस एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग एंड व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड टू मी, देन आई कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट। एटलीस्ट दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में एटलीस्ट स्टार्ट विद 1 मॉक टेस्ट इफ नॉट पॉसिबल, एंड लेटर ऑन इंक्रीज इट टू 2 or 3, बिकॉज जो आपके इंटेंस सेशन मैंने बोले थे 50 मिनट के, दैट इज गोइंग टू इंप्रूव विद टाइम, योर कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू इंप्रूव विद टाइम। तो आप ये सोचिए कि आपको कॉन्सेंट्रेशन एटलीस्ट 2 घंटे की बनानी है, बिकॉज माई मॉक एग्जाम और द एक्चुअल एग्जाम इज गोइंग टू बी फॉर 2 hours, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम कुछ दिन बाद मॉक लगाना चालू कर दें, ताकि हमें समझ में आए कि एग्जाम में हमें कितनी देर बैठना है, कैसी कंसंट्रेशन रहेगी, और कैसे मैं एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। सो अप्लाइंग फॉर मॉक्स और यूजिंग मॉक एग्जाम्स फॉर द प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आगे भी यही लिखा है, जो टेक्निक्स के अंदर हमारे पेरेंटो टेक्निक है उसके अंदर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मॉक एनालिसिस। अब मॉक एनालिसिस क्या है, राइट, विल टॉक अबाउट द मॉक एनालिसिस पार्ट। मॉक जितना हम लोग करते हैं दैट विल ओनली गिव मी
20% result. If I attempt the mocks, it will only give me 20% result. What will give me the result of 80% is the analysis of mock. जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा मेरा वीकर सेक्शन है. मैंने क्या बोला था, हम सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करेंगे. तो स्वॉट एनालिसिस का फर्दर जो चीजें आती हैं वो यहीं से आती हैं. जब आप मॉक एनालिसिस करेंगे, हो सकता है स्वॉट एनालिसिस एक तरफ से गलत हो गया हो, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू इन दिस क्लैट एग्जाम फॉर यू, राइट. बट जब आप एनालिसिस करेंगे, देन यू विल बी वेरी श्योर दैट व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माय weaknesses, right? So you need to be very sure that you do this analysis after each and every mock that you give. mock देते ही थक गए हो, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेजर एक्टिविटी कर लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद जस्ट डू द एनालिसिस. अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, so that is not going to help you, right? So this was all about how to give CLAT exam and how to appear for it. So we have gone through all the sections कि हमें कैसे अपीयर करना है और कैसे हमें टेक्निक्स अपनानी है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है. अकॉर्डिंगली 60 डेज की स्ट्रैटेजी है. राइट नाउ वी हैव एटलीस्ट 60 डेज. इट माइट इंक्रीज ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, यू नो, बट राइट नाउ लेट्स एज्यूम कि द एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 22nd ऑफ जुलाई. लेट्स सपोज दे गिव द डेट ऑन 1st ऑफ जुलाई, दैट आफ्टर 21 days the exam will be there. So it might happen on 22nd of July. Now the best technique which is going to help you ultimately is practice, practice and practice. There is no other technique. Especially for the CLAT exam, you have to practice English comprehensive skills by reading the newspaper, by solving RCs and different types of things, right? So practice is the only sole thing, along with hard work. I would say स्मार्ट हार्ड वर्क. अगर आप स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे, आई हैव टोल्ड यू द टेक्निक्स हाउ टू डू अ स्मार्ट हार्ड वर्क, एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉलो देम, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके, नाउ we at JS classes are conducting CLAT classes despite the lockdown. We are doing it online with JS classes. You can contact us on the number given below, 8696772121. So we have daily classes. We have a very good set of experienced faculties who have at least 8 to 10 years of experience. They have taught a lot of CAT aspirants, and they have also taught the aspirants that have got AIR 1, 2 and 3, right? And we'll be providing you with study notes, doubt sessions, each and everything will be there. So just join with us at the social media. We are everywhere right now. Facebook is JS classes SGNR. YouTube also the same name. On the Telegram, JS classes. Most of the important information is actually focused and sent on the JS classes Telegram group, or I would say the Telegram channel. Also the email ID, if you have any queries about the courses, the fees and everything, you can mail us at jsclassessgnr@gmail.com. Also you can contact us on this given number, 8696772121. So join with us at JS classes and crack the exam, get the best results. All the very best.